Lesson 3. The day the earth turned gold. Once upon a time there was a king who was famous for his charity. युगों पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था. People said, to the hungry he gives food, to scholars he gives rewards, to noblemen he gives titles and honors. In fact, he is never tired of giving. लोग कहते थे, भूखों को वह भोजन देता है, विद्वानों को पुरस्कार देता है और सम्मान्य लोगों को उपाधियां व आदर देता है. वास्तव में वह दान देने से कभी थकता नहीं. But he had in fact already tired of giving. लेकिन वास्तव में राजा अब दान करने से थक चुका था. He thought, all my life I have been giving alms and awards. Where is the end? Are the people really needy or do they continue to flock simply because I give? Don't I see the same faces coming to me again and again wearing the standard mask of gratitude? उसने सोचा, मैंने जीवन भर दान और पुरस्कार बांटे हैं. इसका अंत कहाँ है? क्या लोग सच में जरूरतमंद हैं या वे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं देता हूँ? क्या मैं बार बार उन्हीं चेहरों को नहीं देखता जो हमेशा कृतज्ञता का मुखौटा पहने रहते हैं? He thought a lot and decided to stop the practice. उसने बहुत सोचा और इस प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया. If give I must, it should be only to those who are really needy. It is high time I know who are really needy and, to begin with, I must find out the poorest man in my kingdom, he decided. अगर मुझे देना ही है तो केवल उन्हीं को दूंगा जो वास्तव में जरूरतमंद हैं. अब समय आ गया है कि मैं जानूं कि मेरे राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, उसने निर्णय लिया. Accordingly, he sent his minister to find out the poorest man. इसके अनुसार उसने अपने मंत्री को राज्य के सबसे गरीब व्यक्ति को खोजने के लिए भेजा. A week later, the minister returned and announced in the tone of a successful man. एक सप्ताह बाद मंत्री लौटा और सफल व्यक्ति के स्वर में घोषणा की. Explorer said, "My lord, not far from here, inside the forest there is a small hillock." अन्वेषक बोला, महाराज, यहाँ से अधिक दूर नहीं, जंगल के भीतर एक छोटा सा टीला है. On top of that sits the poorest man of our land, a mendicant. उसके ऊपर हमारे राज्य का सबसे निर्धन व्यक्ति रहता है, एक सन्यासी. He has no roof over his head, nothing on his body except a yard of bark. उसके सिर पर कोई छत नहीं, तन पर केवल वृक्ष की छाल मात्र है. He lives on whatever fruit some woodcutters leave beside him on their way home from the forest. वह उन्हीं फलों पर जीवित रहता है जो लकड़हारे जंगल से लौटते समय उसके पास छोड़ जाते हैं. Is there really such a man in my kingdom? I must see him, said the king. क्या वास्तव में मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है? मुझे अवश्य उसे देखना चाहिए, राजा ने कहा. He rode into the forest and then climbed the mountain and found the mendicant sitting still, his eyes closed. वह जंगल में घुसे और पहाड़ी पर चढ़े. वहाँ उन्होंने देखा कि सन्यासी स्थिर बैठे हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं. The king had to wait for a long time. राजा को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. When the mendicant opened his eyes, he said, "I am the king of this land." जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली, तो राजा बोले, मैं इस भूमि का राजा हूँ. I am sad to see the miserable condition in which you are living. मुझे तुम्हारी दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ. I want you to dress well. Tell me, which dress would you like? A धोती और a gown? मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे वस्त्र पहनो. बताओ, तुम्हें कौन सा वस्त्र चाहिए, धोती या चोगा? The mendicant smiled but kept quiet. सन्यासी मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले. The king said again, "I would like to build a house for you. Tell me, what kind of house would you like to own?" राजा ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनवाना चाहता हूँ, बताओ, तुम कैसा घर चाहते हो? The mendicant smiled again, but still he did not speak. सन्यासी फिर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. A little later, the king said, "I will arrange to send some food for you every day. Tell me your preference in food." कुछ देर बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन भोजन भेजने की व्यवस्था कर सकता हूँ. बताओ, तुम्हें किस प्रकार का भोजन पसंद है?
The mendicant smiled but still kept mum. सन्यासी मुस्कुराते रहे, परंतु फिर भी मौन ही रहे। The king began losing his patience and cried out, "I appeal to you, to speak." राजा अपना धैर्य खोने लगे और ऊंची आवाज में बोले, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया कुछ तो बोलो। Slowly but sweetly, the mendicant said, "My dear king, you are mistaken. I am not the poorest man." धीरे धीरे लेकिन मधुर स्वर में सन्यासी बोले, प्रिय राजा, आप गलत हैं। मैं सबसे गरीब व्यक्ति नहीं हूँ। There is another man in the kingdom who is poorer than myself. इस राज्य में मुझसे भी अधिक गरीब एक और व्यक्ति है। So far as I am concerned, although I look poor, I am very rich, for I can change the earth into gold. जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं देखने में भले ही गरीब लगूं, लेकिन वास्तव में बहुत धनी हूँ, क्योंकि मैं धरती को सोने में बदल सकता हूँ। The king gaped with amazement for some time and asked, "Will you kindly tell me who is poorer than you?" राजा आश्चर्य से कुछ देर तक स्तब्ध रह गए और फिर बोले, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आपसे भी गरीब व्यक्ति कौन है? And will you kindly reveal to me the secret of transforming the earth into gold? और क्या आप कृपया मुझे धरती को सोने में बदलने का रहस्य बता सकते हैं? The mendicant said, "To know these things you have to follow a certain discipline." सन्यासी बोले, इन चीजों को जानने के लिए आपको एक विशेष अनुशासन का पालन करना होगा। I will follow, said the king enthusiastically. मैं इसका पालन करूंगा, राजा ने उत्साहपूर्वक कहा। For 1 year, every day, you must come here once before sunrise and once again before sunset and spend some time with me, said the mendicant. 1 वर्ष तक प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले एक बार और सूर्यास्त से पहले एक बार यहाँ आना होगा और मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा, सन्यासी ने कहा। I will do so, said the joyous king, bowing to the mendicant. मैं ऐसा अवश्य करूँगा, राजा ने आनंद पूर्वक कहा और सन्यासी को प्रणाम किया। And he came there twice every day without fail. और वे बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन वहाँ 2 बार आने लगे। The mendicant seldom uttered any word, but his charming smile always spoke of his affection for the king. सन्यासी बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी मनमोहक मुस्कान हमेशा राजा के प्रति उनके स्नेह को व्यक्त करती थी। He made the king sit down and meditate for some time. वे राजा को बैठाकर कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए कहते थे। For the king, the discipline was a bit awkward experience for the first few weeks. राजा के लिए यह अनुशासन पहले कुछ हफ्तों तक एक अजीब अनुभव था। But soon he realized that it was the most welcome change from the dry or anxious hours in the court where he was always surrounded by diplomats and flatterers and discontented people. लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि यह उनके दरबार के शुष्क और चिंताजनक समय से एक सुखद बदलाव था, जहां वे हमेशा राजनयिकों, चापलूसों और असंतुष्ट लोगों से घिरे रहते थे। After a few months he grew so fond of his visits to the mendicant that he eagerly looked forward to the twilights. कुछ महीनों के बाद उन्हें सन्यासी से मिलने की इतनी आदत हो गई कि वे संध्या समय का बेसब्री से इंतजार करने लगे। The silence of the hillock, the sunrise and sunset which colored the landscape, the breeze which embraced him with the message of freedom, the songs of the birds in the wood and above all the quiet yet overwhelming presence of the mendicant slowly made the king a different man. उस पहाड़ी की शांति, सूर्योदय और सूर्यास्त जो पूरे दृश्य को रंग देते थे, स्वतंत्रता का संदेश देती हुई हवा की ठंडी छुअन, जंगल में पक्षियों के मधुर गीत और सबसे बढ़कर सन्यासी की शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति ने धीरे धीरे राजा को बदल दिया। The little time he spent there every day had its sure effect on the rest of his time and routine. वहाँ बिताया गया थोड़ा सा समय उनके शेष जीवन और दिनचर्या पर गहरा प्रभाव डालने लगा। The king did not remember when a year passed. राजा को याद भी नहीं रहा कि कब एक वर्ष बीत गया। He even did not know when several years passed. उन्हें यह भी पता नहीं चला कि कई वर्ष कब बीत गए। At the end of the 3rd year, one day the mendicant suddenly asked the king, "Well, it seems we have forgotten all the 2 things you wanted to know, about the man poorer than myself and about the secret of transforming the earth into gold. Would you not like to know about them?"
तीसरे वर्ष के अंत में एक दिन सन्यासी ने अचानक राजा से पूछा, तो ऐसा लगता है कि हम उन 2 बातों को भूल गए हैं जिन्हें आप जानना चाहते थे मुझसे भी गरीब व्यक्ति के बारे में और धरती को सोने में बदलने के रहस्य के बारे में। क्या आप इन्हें जानना नहीं चाहेंगे? The king smiled and replied, but haven't I known them already? I was the poorer man. राजा मुस्कुराए और उत्तर दिया, लेकिन क्या मैं इन्हें पहले ही नहीं जान चुका? वह गरीब व्यक्ति तो मैं ही था। Because I was anxious to possess more gold as I was begging to know the secret of changing the earth into gold. क्योंकि मैं अधिक सोना पाने के लिए बेचैन था, जैसे कि मैं धरती को सोने में बदलने के रहस्य को जानने की भीख मांग रहा था। And secondly, I believe by now I have learned the secret of changing the earth into gold. और दूसरी बात, मुझे विश्वास है कि अब तक मैं धरती को सोने में बदलने का रहस्य सीख चुका हूँ। When I sit here and marvel at the splendor of nature all around, at the sunsets and the sunrise when the colors of heaven are sprinkled on the earth, at the diamond-fringed clouds, at all God's creation, all appear to me 1,000 times more wonderful than gold. जब मैं यहाँ बैठता हूँ और चारों ओर फैली प्रकृति की भव्यता पर आश्चर्य करता हूँ, जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय स्वर्ग के रंग धरती पर बिखर जाते हैं, जब हीरों से जड़ी बादलों की छटा देखता हूँ, जब मैं ईश्वर की सारी सृष्टि को निहारता हूँ, तो यह सब मुझे सोने से 1000 गुना अधिक अद्भुत प्रतीत होता है। The mendicant smiled and said, "You have caught it, and that is because you have turned to gold within." सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुमने इसे प्राप्त कर लिया है और इसका कारण यह है कि तुम स्वयं भीतर से सोने में बदल चुके हो। वर्ड मीनिंग, फ्लॉक, अराइव इन लार्ज नंबर्स। हिंदी, झुंड में आना, भारी संख्या में इकट्ठा होना, डैश बड़ी संख्या में एक स्थान पर आना। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। हिंदी, आभार, कृतज्ञता, डैश किसी के प्रति धन्यवाद या एहसानमंदी। मेंडिकेंट, पैथेटिक। हिंदी, भिक्षु, सन्यासी, डैश त्यागी व्यक्ति जो संसारिक सुखों से दूर रहता है। रिवील, डिस्क्लोज। हिंदी, प्रकट करना, उजागर करना, डैश किसी चीज को सामने लाना या बताना। ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग। हिंदी, परिवर्तन करना, बदलना, डैश किसी चीज को पूरी तरह से बदल देना। ऑकवर्ड, स्ट्रेंज। हिंदी, अजीब, असहज, असामान्य या असुविधाजनक स्थिति। एंग्शियस, वरिड। हिंदी, चिंतित, व्याकुल, घबराहट या बेचैनी महसूस करना। ट्वाइलाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग। हिंदी, गोधूली बेला, सांझ और भोर, सुबह या शाम का हल्का उजाला। Like, share and subscribe.